ملاکن ڈویژن کے دیگر اضلاع کی طرح شانگلہ میں بھی آج تیسرے روز سے بالائی اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تیز بارشوں کے باعث بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند، مواصلاتی نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ GNN غازی احمد سے۔ دیکھیں شانگلہ کے بالائی اور میدانی علاقوں میں آج تیسرے روز کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ جاری ہے۔ بارشوں کے باعث جاتی ہوئی سردی کو بریک لگ گیا ہے۔ لوگوں نے ایک بار پھر گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا ہے اور اپنے گھروں تک محدود ہے۔ ساتھ ساتھ میں اگر ہم بالائی علاقوں کی بات کریں تو جگہ جگہ لینڈ سلائیڈنگ اور بھاری پتھر گرنے کے بھی اطلاعات موصول ہوئے ہیں، جس کے باعث سڑکیں بھی بند ہیں، مواصلاتی نظام بھی بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ شدید بارشوں کے باعث ندی نالے بھی بے پر گئے ہیں، جبکہ دریاؤں کے بہاؤ میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور مین شاہراہوں پر بھاری پتھر گرنے کے بھی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کرے اور کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں فری ٹول نمبر 1122 پر رابطہ کرے۔ تاہم محکمہ موسمیات نے شانگلہ کے بالائی اور میدانی علاقوں میں شدید بارشوں کا یہ سلسلہ مزید جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ ابھی آپ کو بتائیں PDMA نے بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریوں کی تفصیلات جاری کر دی ہے۔ بلوچستان میں چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے 9 افراد جاں بحق، صوبے بھر میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گوادر، ہرنائی، نواکلی سمیت دیگر علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جہاں ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ PDMA نے بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ بلوچستان میں چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ صوبے بھر میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گوادر، ہرنائی سمیت دیگر علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں جہاں ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ PDMA نے بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ بلوچستان میں چھت اور آسمانی بجلی گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ صوبے بھر میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ گوادر میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فیض آباد دھرنا کیس کی انکوائری رپورٹ تیار کر لی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیشن کی رپورٹ 149 صفحات پر مشتمل ہے۔ انکوائری کمیشن نے فیض آباد دھرنے سے جڑے محرکات کا جائزہ لے کر سفارشات تیار کی ہیں۔ رپورٹ میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بری الذمہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال اور شہباز شریف نے سہولت کاری میں ادارہ یا ادارے کے افراد کے کردار سے انکار کیا ہے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو معاملے کو حل کرنے کا مینڈیٹ دیا تھا۔ پنجاب حکومت نے TLP مارچ کو لاہور میں روکنے کے بجائے اسلام آباد جانے کی اجازت دی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں کمزوریوں کا بھی احاطہ کیا جائے۔ پالیسی سازوں کو فیض آباد دھرنے سے سبق سیکھنا ہوگا۔ حکومتی پالیسی میں خامیوں کی وجہ سے فیض آباد دھرنا جیسے واقعات کو ہوا ملتی ہے۔ حکومت نے ایک ماہ میں دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 53 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 293 روپے 94 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 14 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 290 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 69 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 193 روپے 8 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ اسی پر شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام پر حکومت مزید بوجھ ڈالنا بند کر دے۔ ساری مشکلات ہیں بھائی، ہر چیز مہنگی ہے اور یہ تو حکومت جو ہے بولتے ہیں ریلیف دیں گے۔ پیٹرول 210 کا 200 روپے کریں، یہ کیوں بڑا کے ہم لوگوں کو تم خوشی کرنے پہ زور دے رہے ہیں؟ ہر ہفتے جو ہے نیا ریٹ آ جاتا ہے پیٹرول کا بغیر کسی وجہ کے۔ ابھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول بڑھا ہے اور یہاں پر جو پرانا سٹاک ہے اس کے اوپر یہ اپنا نیا ریٹ لے لیا انہوں نے۔ اب یہ ہم عوامی پس رہے ہیں 1 روپے۔ اتنا زیادہ پیٹرول مہنگا کر دیا، ہم اتنی دور سے آتے ہیں، ہمارے لیے ہماری سیلری جتنی ہے اس سے بہت زیادہ انہوں نے پیٹرول کا کر دیا ہے۔ ان کی حکومت آئی ہے، انہیں خود بخود سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں مہنگائی کو بڑھانے کے بجائے کم کرنا چاہیے۔
लोगों की आमदन उतनी नहीं बढ़ रही जितना पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। आवाम ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ 4 ਰੁਪਏ यूनिट सस्ता करके 5 रुपए पेट्रोल ਵਧਾਤਾ तो ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਕੀ करना। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन की जानिब से आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई को बंद करने का ऐलान किया गया। एलामिया के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से नाप तोल में कमी के खिलाफ पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को बंद रखा जाएगा। मुल्क के तमाम हवाई अड्डों को भी पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी मुअत्तल रखी जाएगी। मीटराइज्ड सिस्टम के तहत भराई के मुतालबे को फौरी पूरा किया जाए। मुतालबात की मंजूरी तक फराहमी को मुअत्तल रखा जाए। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर ख़ारजा फैसल कुछ देर के बाद वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से दी जाने वाली ज़ियाफ़त में भी शिरकत करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, क्या शेड्यूल रहेगा फैसल बिन फरहान का? जी, सऊदी वज़ीर ख़ारजा का फैसल बिन फरहान जो 2 रोज़ा दौरे पर गुज़िश्ता रोज़ से पाकिस्तान में, आज उनके दौरे का असद वर्किंग डे है और आज वो मसरूफ दिन गुजारेंगे। अब से कुछ देर में वो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म पहुँचेंगे जहाँ उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। मुलाकात 1-to-1 भी होगी और उसके बाद वफ़द की सतह पर भी बातचीत होगी, जिसके बाद ऐवान वज़ीर-ए-आज़म के में मुलाकात के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा ऐवान सदर पहुँचेंगे जहाँ सदर आसिफ अली ज़रदारी से न सिर्फ उनकी मुलाकात होगी बल्कि वो सदर की जानिब से दी गई ज़ियाफ़त में भी शिरकत करेंगे। उनके वफ़द के अरकान भी सदर की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। ऐवान सदर मुलाकात के बाद उनकी वो एक इजलास में शिरकत करेंगे जो SIFC और सऊदी वफ़द के दरमियान होगा। उस मुलाकात में SIFC हुकाम के साथ साथ असकी क़यादत भी शरीक होगी, जबकि ज़राए का ये कहना है कि इस दौरान जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होगी, जिसमें पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन के साथ साथ सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी और उसके अलावा डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से बातचीत होगी। इस मुलाकात के बाद SIFC इजलास के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा दफ्तर ख़ारजा पहुँचेंगे जहाँ इसहाक़ डार से उनकी 1-to-1 और फिर वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की जाएगी, जिसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा अपना दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया एजाज अहमद तफसीलात के लिए। लाहौर हाई कोर्ट में PB 133 ननकाना साहब से कामयाब उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने कामयाबी की नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN इबादुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इबादुल हक, बताइएगा इस समाअत का अहवाल। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद ने मोहम्मद आसिफ की दरखास्त पर समाअत की, जो राना अरशद के मुकाबले में मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे। अदालत ने जो राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद रोक दिया है, उसे मुअत्तल कर दिया है और साथ ही इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। दरखास्त में ये नुकता उठाया गया था कि जो आम इंतखाबात में 3500 वोटों की बरतरी से दरखास्त गुजार मोहम्मद आसिफ कामयाब हुए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती की और गिनती करके 2500 वोटों से राना अरशद को कामयाब करार दे दिया गया है। दरखास्त में ये भी नुकता उठाया गया है कि गिनती का जो दोबारा गिनती का जो अहकामात थे वो कानून के बरस थे, इसलिए इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया इबादुल हक तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त खारिज कर दी है। बुशरा बीबी के वकला के अदम पेशी पर अदालत बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दी कि जो उन्होंने रिलीफ मांगा भी है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं, अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं। मजीद जानेंगे, इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस, बताइएगा इस मुतालिक। जी देखें, बुशरा बीबी की जो बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनके वकला की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार करते हुए उनकी दरख्वास्त खारिज की है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि ये वो भी नहीं चाहते कि घर से जेल चली जाएं, जो उन्होंने रिलीफ मांगा है वो भी है, पता नहीं वो चाहते भी हैं या नहीं कि रिलीफ मिलना चाहिए। अदालत के साथ इन्होंने जो है वो सियासत खेल रहे हैं। मजाक बनाया हुआ है कि कहाँ भी था कि आज सुनकर इस केस का फैसला करेंगे, फिर भी जो है वो नहीं आए।
जिस पर अदालत ने स्टेट काउंसिल से मुकालमा किया कि ये साइट भी ठीक काम नहीं कर रही और आप भी जो है वो ठीक नहीं कर रहे। जस्टिस मियां शोएब शाहीन आए थे, वो भी जो है वो चले गए, वापस नहीं आए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिया, उन्होंने इस्तफसार किया कि बुशरा बीबी के वकील अदालत में पेश क्यों नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी जो है वो जेल जो है वो चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल जो है वो चली जाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये रिमार्क दिया, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से अदालत के साथ जो है वो सियासत खेली जा रही है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि मजाक बनाया हुआ है, कहा भी था कि अगली तारीख पर बर वक्त जो है वो आए ताकि इस पर जो है फैसला करूंगा, लेकिन फिर भी कोई पेश नहीं हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रोटी की कीमत में 5 रुपए की कमी की है। ताहम पेशावर में रोटी तहाल 20 रुपए में फरोख्त की जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अलिशबा खटक से। अलिशबा, आगाह कीजिएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ रोटी की कीमत में कमी की गई थी। 100 ग्राम की जो रोटी है उसकी कीमत 15 रुपए कर दी गई है, जबकि 200 ग्राम की रोटी की कीमत जो है वो 30 रुपए हो गई है। पहले जो है 120 ग्राम की रोटी जो है वो 20 रुपए में फ़रोख्त की जाती थी। 5 रुपए जो है रोटी की कीमत में कमी देखने को आई है। ताहम पेशावर के किसी भी नान भाई ने अब तक रोटी की कीमत कम नहीं की, क्योंकि इनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इनको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला कि वो लोग रोटी की कीमत में कमी करें। हमारी नान भाई एसोसिएशन से बात हुई तो उनका यही कहना है कि 12 बजे उनका इजलास होगा, जिसमें वो ये फैसला करेंगे कि उनको ये रोटी की कीमत कम करनी है या वो उसी पुराने रेट पे जो है रोटी फरोख्त करेंगे। आपको बताते चले कि पहले जो है आटे की कीमत 20 किलो तैली की जो कीमत है उस पर 500 रुपए तक कमी आई थी, जिसकी बिना पर जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रोटी की कमी में 5 रुपए तक कमी की है, जो कि जल्द ही नाफिज कर दी जाएगी। जी नाज़रीन, अहम खबर यह है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान वफ़द के हमरा वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सऊदी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का सिलसिला जारी है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इसी हवाले से जानेंगे, औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। जी औरंगजेब, मुलाकात इस वक्त जारी है, अब तक क्या तबादला ख्याल हुआ? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जो है मुलाकात हुई है। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी सालदार और सऊदी वफ़द की इस मुलाकात में शरीक के मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर जो है वो इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के दरमियान जो है वो मुफ़ाहमती याददाश्त की जो है वो दस्तखत होंगी, जिसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद जो सदर आसिम अली ज़रदारी के साथ मुलाकात होगी, जिसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा और उसकी वफ़द की भी जो है वो सदर ज़रदारी के साथ मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए औरंगजेब काकड़। अभी आपको बताएं, मुल्तान में किसानों के लिए बारदाना का हसूल चैलेंज बन गया। महकमे खुराक की जानिब से सिर्फ 6 एकड़ तक रकबा पर ही बारदाना फराहम किया जाएगा। महकमे खुराक फी एकड़ सिर्फ 15 मन गंदुम खरीदेगी, जबकि औसतन फी एकड़ पैदावार 35 से 40 मन है। बारदाना के हसूल में मुश्किलात का शिकार किसानों ने गंदुम फरोख्त के लिए शहरों का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। सुहेब, आगाह कीजिएगा। महकमा खुराक की जानिब से जो दरख्वास्तें हैं वो वसूल की जा रही हैं काश्तकारों से, लेकिन काश्तकार जो है इस सारे प्रोसेस से कोई ख़ास मुतमिन नज़र नहीं आते। एक ऑनलाइन प्रोसेस है, दूसरा 6 एकड़ से ज़्यादा बारदाना नहीं दिया जा रहा और फ़ी एकड़ जो है वो सिर्फ 6 बोरियां दी जा रही हैं और 15 मन हुकूमत जो है 1 एकड़ से जो गंदम है वो ख़रीदेगी और सिर्फ 6 एकड़ तक जो है वो गंदम ख़रीदेगी। इससे ज़्यादा जो गंदम है वो नहीं ख़रीदेगी, जिसकी वजह से गंदम तो इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई है और कुछ जो है वो 6 एकड़ से ज़्यादा के काश्तकार हैं, तो उन्होंने मजबूरन जो है वो एक दो बारदाना में ताख़ीर का शिकार हुई, इसलिए मजबूरन उन्होंने शहरों का रुख कर लिया और शहरों में मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल पर जो है वो गंदम फ़रोख्त कर रहे हैं उन्होंने, जिसकी वजह से वो परेशान है और उन्होंने मजबूरन जो है वो शहरों का रुख कर लिया और शहर में ओपन स्टॉल लगाकर जो है वो अपनी गंदम फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी मुहिम का ऐलान किया गया और 3900 रुपये फ़ीमन कीमत मुकर्रर की गई है। ताहाल खरीदारी हदफ मुकर्रर न किया जा सका। गैर वाज़ेह पॉलिसी से किसान तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं।
रिवायती किसान बारदाना ऐप से लाइल्म हैं। किसानों को बारदाना के हुसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर जान लेंगे, नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर हमारे साथ मौजूद है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी मुहिम के सिलसिला में 2024-25 के लिए पॉलिसी का ऐलान किया गया, लेकिन ये पॉलिसी इस कदर गैरवाज़े है कि किसान जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 13 से 17 अप्रैल तक जो है बारदाना ऐप के ज़रिए किसान बारदाना जो है बुकिंग करवा सकता है, लेकिन बेशतर किसान जो हैं वो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन उनके पास नहीं है या इस ऐप से जो है वो इस सवाल से लाइल्म है, जिससे किसानों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से खरीदारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, मगर हदफ जो है वो ताहाल मुकर्रर नहीं किया गया। फैसलाबाद में 11 खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं, यहाँ पे अमला तैनात कर दिया गया है, मगर किसी को भी ये इल्म नहीं है कि कितनी गंदम जो है किस सेंटर पे ख़रीदी जाएगी। मजमूई तौर पर 6 एकड़ तक जो है गंदम का किसान जो है वो सरकार को गंदम दे सकता है। 3900 रुपये फ़ी मन में गंदम जो है सरकार खरीदेगी। किसान इस हवाले से भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि उनके अखराजात जो हैं वो 2 गुना हो चुके हैं, मगर सरकार जो है वही पुराने रेट पर उनसे गंदम खरीद रही है। और यहाँ पर पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पर वाज़े ना होने से किसान जो है दोहरी अज़ियत में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से जो है मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि पॉलिसी को वाज़ा की जाए और अमदादी कीमत जो है किसान के लिए बेहतर की जाए। अभी आपको बताएं कराची में हैजा वबाल जान बन गया है। जिनार सिविल अस्पताल में योमिया 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक आलूदा पानी और गैर सेहत बख्श खाना डायरिया में इजाफे का सबब बन रहा है। अप्रैल के 15 दिनों में डायरिया के 900 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हैजे से मुतादिद मरीजों की अमवात भी हो चुकी हैं। तफसीलात बता रही हैं शारका कमाल। बिल्कुल, रमज़ान के बाद हमने देखा कि शहर के तमाम सरकारी अस्पतालों में जो डायरिया के मरीज़ हैं उनकी तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो मरीज़ों की तादाद में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त जिन अस्पताल के शोबा हादसात के मॉर्निंग इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी के साथ मौजूद हैं। सर, आपके पास केसेस कितने इजाफा में? रमज़ान में आपके पास नॉर्मल डेज़ में कितने केसेस आते थे, अब कितने आ रहे हैं? इनकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है? क्या प्रिवेंशन है, क्या रीज़न है इसका? जो हमारे पास केसेस हैं रमज़ान से पहले वो 30 केसेस रोज़ आते थे। अभी उनके अंदर 20% जो है ना वो इंक्रीजमेंट हुई है, 50 को टच कर लगे और ये केसेस भी बहुत सिवियर टाइप के केसेस है। अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो सिवियर डायरिया के साथ आ रहे हैं, उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी बॉडी के अंदर नमकियात और पानी कम हो रहा है और उनकी वजह से हमारे पास 3-4 कैजुअल्टीज़ भी हुई हैं जो कि डायरिया की वजह से हुई हैं। जी बिल्कुल, शहरियों को चाहिए कि वो पानी एक तो बॉयल करके इस्तेमाल करें, दूसरा बाहर की चीज़ें खाने से परहेज़ करें ताकि वो इस वबा से जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, जो कि शिद्दत भी इख्तियार करती जा रही है, रोज़ाना की तादाद में जो मरीज़ों की तादाद हमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है, इससे बच सकें। जी।